hope you're all doing well. As the title suggests, this reading is about your 2022, specifically about the career, how the career is going to be in the year 2022 for you. If you're in education, job, बिजनेस, जो भी जिस भी स्टेज पर हो आप अपनी लाइफ में, एजुकेशन में हो, तो एजुकेशन कैसे रहने वाली है इन द ईयर 2022? कोई चेंज आ रहा है एजुकेशन में, शिफ्ट आ रहा है, या अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो क्या चेंजेस है या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है अपने करियर में, उससे रिलेटेड ये आपको जो है रीडिंग में इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो वेलकम टू दिस सेटअप. ये जो रीडिंग है ये आपके सन साइन पर बेस्ड है. जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका जो सन है वो कौन सा साइन में प्लेस्ड है, उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है. बिकॉज वी आर गोना कवर द नक्षत्रास, सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपने सन साइन से ये रीडिंग देखो. बट अगर आपको नहीं पता आपका जो सन साइन, आई शुड से आपका जो सन है वो कौन सा साइन में प्लेस्ड है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, डू नॉट वरी, आई गॉट यू कवर्ड. यहाँ पर आप जो हो स्टोन से भी अपनी पाइल पिक कर सकते हो. बट अगेन बिकॉज वी आर कवरिंग द नक्षत्र, सो चूज योर पाइल, सिलेक्ट योर पाइल फ्रॉम योर सन साइन ओनली. सो यहाँ पर जो है आपके लिए जो पाइल नंबर 1 है, इट इज़ गोना बी दिस ब्राउन स्टोन एंड इट्स योर सात्विक साइन पाइल. मीनिंग अगर आपका जो सन है इट इज प्लेस्ड इन द कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसी साइन, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. इफ योर सन इज प्लेस्ड इन द rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra, then you have to choose pile number 2, which is of this orange stone. Then if your sun is placed in the Tamasic signs like your Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius, then you have to choose pile number 3, the blue stone. Alright, so let's just get started. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose this brown stone, or your sun is placed in the sattvic signs like Cancer, Leo, Sagittarius or Pisces. So यहाँ पर if your sun is placed, let's say in the sign of Cancer, so in the sign of Cancer we have the nakshatras like Punarvasu, Pushya, Ashlesha. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Pushya. You are a person and your father as well is a person, because sun represents your father, sun is authority, sun represents our soul's path as well. That's why sun is known as the Atma Karaka, soul significator. So जो भी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी that is I mean it's applicable to your father as well, because sun is father. So you and your father are the people who love milk products. You guys are always into that extra cheese, grilled cheese. Milk product becomes really important. Some of you can even deal with lactose intolerance with this Pushya, and even Vishakha, Kritika, ye nakshatras bhi can give you lactose intolerance if malefics are impacting. But yes, Pushya is the nakshatra of a cow, and a cow provides nourishment, and the symbolism of Pushya is the cow's udder. So it's about providing nourishment, it's about providing guidance as well, because हम कहते हैं कि cow is like our mother, right? And our mother is the first guru. That's why this nakshatra's deity is Jupiter, because Jupiter is the preacher, teacher, advisor, counselor. It's the guru. So sun being in Pushya shows that you and your father are great teachers, advisors, counselor, motivators as well. You guys can even gain weight quickly. That can even happen if the 6th lord is involved or the 1st lord is involved. You guys can gain weight quite quickly because Jupiter represents fat. So that's there. But yes, sun being in Pushya shows that you and your father are great teachers, and the thing is that you will have many children.
बायोलॉजिकल भी हो सकता है, या फिर आपके जो स्टूडेंट्स होंगे या आपके जो अंडर काम करेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, यू आर गोना ट्रीट देम एज योर चिल्ड्रन. So this nakshatra also is very fertile, but yes, a teacher can also make their students or behave with their students like they are their own children. So kahin na kahin, you and your father are the people who will have many children here, will have many students. If sun is again, Saturn is there or Jupiter is there in this Pushya, it can even show that you and your father are very patriotic people. Then if your sun is placed in the Leo sign, Leo is again a Sattvic sign because it's ruled by Sun, a Sattvic Graha. Sun is a mild malefic itself because it represents ego, but again it's Sattvic sign. Again it's a Sattvic Graha. So Sun being in Leo, it can be in the nakshatra of Magha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni. Let's say your sun is placed in Magha. So you and your father are going to be the people who are going to be very proud of your lineage, proud of your bloodline, and you guys always want to be in power. And of course, if malefics are impacting this, it is very hard for you guys to get into power, to become that monitor of the class or to become someone who has power. But yes, Sun in Magha shows that you guys really value and you guys really are into the custom traditions of your family. And kahin na kahin, there is this energy inside you both, you and your father, ke hame power chahiye. We want power. And you will get the power as well because now Sun represents the soul's path here. So somehow your part of your destiny is to be in power and you're going to give orders to other people in your career as well. But yes, the tendency is to be in power. That's important. And you guys will also be quite interested in bloodline ki mere andar कौन सा खून दौड़ रहा है, ये राजपूत खून है या क्या है. सो बेसिकली इट्स ऑल्सो अबाउट द ब्लड, इट्स अबाउट द लिनिएज कि मेरे एंसेस्टर्स क्या करते थे, क्या थे वो, मेरा ओरिजिन क्या है और मेरा डीएनए कहाँ कहाँ का है. आई थिंक देयर इज़ दिस वेबसाइट, और आई शुड से कि बहुत सारी आज की डेट में वेबसाइट्स है जो आपको अपना ब्लड सैंपल देना होता है और वो आपको आपका ओरिजिन बताते हैं कि आप कितने परसेंट राजस्थानी हो, कितने परसेंट पर्शियन हो, तो वो सब चीज़ें भी बताते हैं आजकल. सो अ माघा पर्सन विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. So you guys can also be into biotechnology. Again, it's about DNA genome. So that's there. Let's say your sun is placed in the Sagittarius sign and we have the nakshatras like Mula, Purva Ashada, Uttara Ashada. So these, especially Purva and Uttara, are about victories. It's about war. So let's say your sun is placed in the Uttara Ashada nakshatra. So you and your father are great writers, prolific writers. You guys can even gain income, gain money through writing, through publishing. Especially Uttara Ashada 9th house wala, or I should say 9th sign, Sagittarius wala, can even make you get your book published because 9th house represents publications, publishing one's book. At the same time, you and your father can be very good at strategizing things, planning things. You guys also want to live a luxurious lifestyle. That's also there. Wearing name brand clothes can be a great remedy for you guys. Then let's say your sun is placed in the Pisces. Pisces may we have the nakshatras like Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. So let's say your sun is placed in the Revati nakshatra. So you are gonna be a person who will reject many good rishtas, and your father would also have rejected many good rishtas, and you guys were confused, and you will be confused when it comes to marriage, when it comes to commitment. You guys will be confused here for sure because the symbolism of Pisces is of two fishes. One fish is going in one direction, the other fish is going in some other direction. So it shows that confusion. But yes, this is a nakshatra about regal royal lineage as well, and it's a nakshatra about music also, and especially classical music because that's a regal royal, not Western music if you're an Indian, but it's about classical music. It's about even
learning some music instrument, it's about getting to know the aquatic life, going on cruise. So ये सब आपकी bucket list में चीज़ें हो सकती है with this Revati. At the same time, you and your father finds lost objects quite quickly. You and your father can be the devotees of Krishna as well, and or can be devotees of Christ. That can even happen, because both Krishna and Christ were shepherds. And your favorite book can be The Alchemist as well by Paulo Coelho. So that's also there. And let's just get started. आपका जो करियर है, यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है फॉर ईयर 2022. पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है फॉर in terms of career for year 2022. All right, so we have 3 of coins. Okay, पहले 3 कार्ड निकल आए हैं. We have 3 of coins in reverse, we have the hanged man, and we have 2 of coins here. All right, so 3 of coins, basically 3 of pentacles. ये कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन को शो कर रहा है कि आप करंटली अपने करियर में किधर हो, या फिर आपके नियर पास्ट के बारे में बता रहा है. जो टेरो है वो हमारी एनर्जी पर बेस्ड होता है, करंट एनर्जीज पर. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करंट एनर्जी इज अबाउट दैट यू वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली. आपको शायद ग्रुप में रहकर काम करना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एंड समहाउ यू आर ऑल्सो फेसिंग क्रिटिसिज्म at your work, criticism in your career, maybe through your classmates as well, if you are in the stage where you are studying. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिटिसिज्म मिल रहा है दूसरे लोगों से एट योर वर्क, इन योर करियर, एंड कहीं ना कहीं आप अकेले काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू ग्रुप में काम करना. दैट आई एम सीइंग, एंड आई सी के ये जो सिचुएशन है, ये जो वक्त है, ये भी निकल जाएगा. डू नॉट वरी, बट आई डू सी कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअली वर्क करना चाहते हो, आप ग्रुप में रह के काम नहीं करना चाहते. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग मुझे एडवाइस दे रहे हैं एट माई वर्क, इट्स नॉट गुड फॉर मी. सो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. जो आपके मे बी लोग जो साथ काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो गलत गाइड कर रहे हैं, या फिर दे आर नॉट राइट फॉर यू. वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. इंडिपेंडेंटली वर्क आप करना चाहते हो, दैट आई सी. एंड इफ़ यू आर इन अ जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, यू वुड वॉन्ट टू वर्क और you would want to open your own business. वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. Then we have the hanged man here. यहाँ पर जो है आप क्या चाहते हो इन द ईयर 2022. अगेन आई फील जो ये हैंग मैन है, इट इज़ शोइंग कि आप शायद थोड़ा सा ब्रेक लो इन द ईयर 2022 टू जस्ट थिंक दैट व्हाट यू वांट टू डू, and then you make a decision for your life in terms of your career जो काफ़ी unorthodox हो, जो against the norms of society हो. आप अपना खुद का business भी यहाँ पर कर सकते हो. Plus I also see 2 of coins here in reverse. कहीं ना कहीं आप 2 चीज़ें एक साथ यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. 2 चीज़ें जो है आप एक साथ करो without any juggle or struggle. एंड येस, बट द थिंग इज़ कि आप चाहते हो कि आप अपना जो करियर है वो चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो. आप कुछ और अपनी लाइफ में करना चाहते हो. जो आप करंटली कर रहे हो आप उसमें सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे. पाइल नंबर 1. एंड समहाउ द गाइडेंस और द एडवाइस इज़ ऑल्सो कि आप जो हो एक वक्त पर 2 काम कर लो, बिजनेस भी और जॉब भी, साइड बिजनेस एंड जॉब. बट अगेन द थिंग इज़ कि यहाँ पर ये एडवाइस नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करो या सिर्फ और सिर्फ जॉब करो. नो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इन द ईयर 2022 2 काम करते हुए नज़र आ रहे हो, 2 चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड 2 चीज़ें कर भी रहे हो तो उसके अंदर आपको जगल और स्ट्रगल नहीं हो रहा. अगर हम 2 चीज़ें कई बार करते हैं तो हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं. हमारा जो रूटीन है, हमारी जो लाइफ है, बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल हो जाती है. उसके अंदर बहुत हड़बड़ी आ जाती है, बहुत जल्दबाजी आ जाती है. पर वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही बिकॉज द 2 of coins इज इन रिवर्स. अगर ये अप फ्रंट होता, अपराइट होता, तो कहीं ना कहीं ये फिर वो जगल, स्ट्रगल, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज दिखाता. बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, तो इट इज शोइंग कि कहीं ना कहीं यू आर रेडी टू डू 2 things एट वंस. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू कि 2 चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो. एक बिजनेस हो सकता है, एक जॉब हो सकती है. समहाउ यू आर नॉट रियली सेटिस्फाइड विद योर वर्क राइट नाउ.
एंड ऐसा हो सकता है आप थोड़ा ब्रेक लो इन द ईयर 2022, सोचो कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप सोच विचार करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बट जो डिसीजन लोगे या फिर जो एडवाइस है डिसीजन लेने की, इट इज़ दैट यू डू योर बिजनेस एज वेल, यू डू योर जॉब एज वेल एज यू डू योर साइड बिजनेस। दैट्स द गाइडेंस, दैट्स द एडवाइस फ्रॉम द टैरो हेयर। बट आई डू सी कि इन द ईयर 2022 आप करियर में दो चीज़ें एक साथ करो। राइट नाउ यू आर नॉट सेटिस्फाइड द थिंग विच यू आर डूइंग। यहाँ पर आपके लिए मैं मास्टर कार्ड भी निकालती हूँ कि प्रॉपर मतलब क्या थीम रहने वाला है आपका करियर रिलेटेड इन द ईयर 2022। All right, so we have the Fool energy. Okay, the Fool represents Mercury. It represents Mercury. It represents even the rhythm. जैसे डमरू है, it is music, right? And the music is like the rhythm. So कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, you can try new things in the year 2022 in terms of career. You get to know about different businesses or different works which you can actually do. और कहीं ना कहीं ये जो वर्क है कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर इवन राइटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज मर्करी रिप्रेजेंट्स राइटिंग, और स्किल्स ऑफ हैंड्स भी, उससे रिलेटेड भी जॉब या बिजनेस यहाँ पर हो सकता है जो आप कर सकते हो। बट आई डू सी कम्युनिकेशन इज देयर, नेटवर्किंग इज देयर, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज मर्करी रूल्स द थर्ड हाउस और द साइन ऑफ जेमिनी विच रिप्रेजेंट सोशल मीडिया। सो कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड आप काम करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो। सो दैट इज समथिंग विच आई सी। एंड अगेन इफ यू सी दिस पर्सन इज लुकिंग अपवर्ड्स हियर एंड वी हैव द बर्ड्स एज वेल। सो आई डू फील इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, IT से भी रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है, बट आप दूरदृष्टा बन रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जुगाड़ नहीं कर रहे, आप फिक्स नहीं कर रहे चीज़ों को, आप प्रॉपर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और कर भी लोगे सोल्यूशन, और दूरदृष्टा यहाँ पर आप बनते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग हियर विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है for the year 2022 in terms of your career? All right, so we have travel. Okay, you're also traveling here, which is a good thing. I mean, great work. But I do see कि यहाँ पर Fool भी और travel भी, again Fool is Mercury, right? Mercury rules the third house of Gemini, or basically it rules the third house. Third house is also short distance travel. So कहीं ना कहीं यहाँ पर short distance travel नज़र आ रहा है, but I also see water, तो ये overseas भी हो सकता है, but most probably it can be a short distance travel, trading से related, या there is some travel for sure in terms of your career in the year 2022 that I am seeing. Then I see trust here. So here I see that you're trusting the process. ये जल्दबाजी आपके अंदर नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा, कब ये चीज़ मेरे फेवर में होगी। नो, you are actually at work, you are working, you are practically working here in the year 2022. मन में ख्याल नहीं है, मन में आइडियाज़, ऑफकोर्स आइडियाज़ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल में कर रहे हो। दैट आई एम सीइंग, एंड यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस हियर, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एज वेल। सो यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस। एंड यहाँ पर जो है गाइडेंस भी ये है कि अगर चीज़ें टाइम लेती है, वक्त लेती है, दैट डज नॉट मीन कि वो चीज़ रियलिटी में नहीं हो पाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। यहाँ पर चीज़ें रियलिटी में होती हुई नज़र आ रही है। अब दो चीज़ें एक साथ करोगे, you're doing two things together, and especially because we have the Fool. Again, Mercury is the child of Chandra, moon का जो बच्चा है, biological child है, it's Mercury. Moon represents waxing and waning, it's always changing, right? Somehow यहाँ पर change transformation है for you in the year 2022, and again doing two things together, I'm seeing that. यहाँ पर आपको क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी चाहिए उस सक्सेस को पाने के लिए, अपने करियर में सक्सेस को पाने के लिए क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, या फिर कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं भी होनी चाहिए। सो आई सॉ दीज टू कार्ड्स। सो वी हैव लोनलीनेस एंड वी हैव ट्रस्ट। अगेन ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, माई गुडनेस। सो फर्स्ट मैं ट्रस्ट कार्ड ही आपके लिए रीड करती हूँ। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली।
will always guide me correctly. The same thing यहाँ पर जो 3 of coins है, what I told you in the beginning was कि आप जो हो कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कलीग्स या आपके क्लासमेट्स, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है वो आपको सही गाइड नहीं करे और कहीं ना कहीं आप उनके साथ ग्रुप वर्क नहीं करना चाहते हो बिकॉज यू थिंक दैट दे कैन गाइड यू अ बिट रॉन्ग, और कहीं ना कहीं अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक आप काम नहीं कर पा रहे हो. मतलब जो आपका फुल पोटेंशियल है वो आपको दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या वो चीज़ आपको जो आप करना चाहते हो एट योर वर्क वो कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ अदर पीपल. दैट्स व्हाई यू वांट टू इंडिपेंडेंटली वर्क. यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पाइल नंबर 1. एंड यहाँ पर जो है बिकॉज अदर पीपल मे नॉट रियली गाइड यू वेल, तो यहाँ पर आप अपनी इनर वॉइस जो है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दो. आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, उस पर यहाँ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. अगेन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. इवन दो चीज़ें स्लो चल सकती है, बट अगेन थिंग इज मैं इतना स्लो नहीं देख रही हूँ चीज़ों को बिकॉज वी हैव मर्करी. मर्करी रिप्रेजेंट्स क्विक मूवमेंट. सो स्टिल कई बार होता है कि चीज़ें अटक जाती है. तो इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस, आई वुड से ट्रस्ट द प्रोसेस हियर एंड द टैरो इज ऑल्सो गाइडिंग यू कि ट्रस्ट द प्रोसेस. डू नॉट क्वेश्चन योर मूव्स, मोटिव्स को, मूव्स को अपने क्वेश्चन मत करो. आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर इनर वॉइस एज वेल. व्हेन वी हैव लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. कहीं ना कहीं जैसे we are seeing people here, right? कहीं ना कहीं, और यहाँ पर भी 3 of coins में भी we have it represents friendship, it represents the people at your work, या आपके जो साथ काम करते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है. कहीं ना कहीं आप अकेले रहकर काम करना चाहते हो, बट जब हम अकेले रहकर काम करते हैं तो कई बार हम लोनली भी फील करते हैं बिकॉज वी ऑल आर व्हाट, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर सोशल बींग्स. तो हमें वो सोशल होना भी हमारे लिए ज़रूरी है नॉर्मल फील करने के लिए. वी नीड टू बी सोशल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी सोशल. तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन जो है आप थोड़ा यहाँ पर फील कर सकते हो, बट अगेन द गाइडेंस इज कि जो आपका काम है इंडिविजुअली करो, वो बेटर रहेगा. इंडिविजुअली करो एंड आपको पता है आप क्या कर रहे हो. यू डोंट इवन नीड गाइडेंस, यू नो वॉट यू आर डूइंग. एंड इन द ईयर 2022 आप बहुत इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी पर ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. बट येस, अपना सोशल इंटरेक्शन भी रखो, सोशल सर्कल भी रखो, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, अपने वर्क पर ध्यान दो. और दैट्स इम्पॉर्टेंट. यू डोंट नीड टू टेक एनी वंस एडवाइस हियर. आप जो कर रहे हो आपको पता है आप क्या कर रहे हो. एंड यहाँ पर जो है मैं आपके लिए एंजल आंसर डेक से 3 कार्ड निकालूंगी. आपने जो है उन 3 में से एक कार्ड अपने लिए पिक करना है, चूज करना है. जो भी आपके मन में क्वेश्चन है एक बार आप वो दोहरा लो. जो भी आपके मन में क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2022 इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कि ये चीज़ हो पाती है या नहीं हो पाती है, होती है तो कब होती है, या कुछ गाइडेंस. सो आपके मन में क्वेश्चन आप जो हो सोच लो. Okay, so this is the group 1, or I should say card 1. Then this is card 2. Then this is card 3. Alright, so आप अपना जो वो कार्ड पिक कर लो, जो आपका क्वेश्चन है उसको एक बार मन में दोहरा लो, और चलो हम पिक करते हैं. दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3. पॉज भी कर सकते हो. मैं यहाँ पर अब ये कार्ड ओपन कर रही हूँ. सो आस्क योर एंजल्स. सो द थिंग इज यहाँ पर जो है व्हेन यू सी पाइल ग्रुप नंबर 1, व्हेन यू सी नंबर्स लाइक 1111 और 333 और इवन 777, तो ये आपके लिए एंजल नंबर्स हैं. जब भी आप ये चीज़ें देखते हो इट्स लाइक अ यस, द एंजल्स आर सेइंग यू यस, ये काम आपको करना चाहिए. जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, जब भी आपको समझ ना आए कि मैं करूँ तो करूँ क्या, वक्त देखो, टाइम देखो कि क्या हो रहा है उस टाइम पर. व्हाट्स द टाइम एट दैट टाइम, दैट्स द गाइडेंस हियर. जो वहाँ पर वक्त हो रहा है अगर वो रिपीटिंग नंबर में है, ग्रेट, अमेजिंग. और अगर वो रिपीटिंग नंबर ऐड होके 3 बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2:01 हुआ है, इट्स द नंबर 3.
राइट, एंजल नंबर। सो कहीं ना कहीं वो आपके लिए यस है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मैसेजेस जो है एंजल्स की तरफ से ज़रूर मिलेंगे, वक्त वक्त पर मिलेंगे, और जब भी आपको ये चीज़ें दिखती है इट्स अ यस। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है या क्या यस नो, कोई टाइमिंग, कुछ, इट्स अप टू यू। ऑल राइट, यहाँ पर जो तीर है वो भी बो से नहीं निकला है, एरो जो है बो से नहीं निकला, आप इसको अभी भी डायरेक्शन दे सकते हो। यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही है, जो आपके एफर्ट्स हैं उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जितना एफर्ट उतना रिजल्ट, कम एफर्ट तो कम रिजल्ट। तो यहाँ पर जो आप एफर्ट कर रहे हो वो पानी में नहीं जाने वाले, उसका रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर निकलेगा। सो पाइल नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3, कार्ड नंबर 3, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप ये पूछ रहे थे कि ये काम मुझे अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, द एंजल्स वांट्स टू गाइड यू कि आप जो हो ये काम अभी कर सकते हो, ये परफेक्ट टाइम है, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू दैट थिंग। सो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है परफेक्ट टाइमिंग आया। जो भी काम आप अपने करियर रिलेटेड करना चाहते हो और सोच रहे थे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर येस आ रहा है, और उसके लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप वो अभी काम कर सकते हो और वो काम जो है आपका फ्लरिश करेगा इफ़ यू डू इट राइट नाउ। व्हेनेवर यू आर गोना सी दिस रीडिंग और आपके मन में क्वेश्चन था कि मुझे ये काम कब शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, येस आ रहा है उसके लिए आंसर, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट दैट वर्क। ऑलराइट, सो इट्स अ येस हेयर। एंड यहाँ पर ग्रुप 2 आपके लिए जो है इट्स अप टू यू, मीनिंग जो आपके एफर्ट्स हैं उस अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। कई बार हम बहुत सारे एफर्ट करते हैं और हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, यहाँ पर उस सिचुएशन का ऑपोजिट हो रहा है, जितने एफर्ट्स करें उतना रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये मैसेज है, जब भी आप एंजल नंबर्स देखते हो वो एंजल नंबर्स आपको गाइड करते हैं कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो उस टाइम पर, सी द टाइम, एंड अगर वहाँ पर एंजल नंबर्स आपके लिए आते हैं इट्स अ यस। ऑलराइट, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है पाइल नंबर 1 फॉर द ईयर 2022 in terms of your career. Alright, so do let me know in the comment section how it resonates with you. What do you think about the prediction? What do you think about your pile? And do like this reading and subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, then I also do personal reading. I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. तो वो readings आप जो हो मेरी website से अपने लिए book करा सकते हो. The link to my website is in the description box below. And till then, I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the orange stone here, and yes, your sun is placed in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra. So let's say your sun is placed in the Aries sign. So in Aries we have the nakshatras like Ashwini, Bharani and Kritika. So let's say your sun is placed in the Ashwini nakshatra. So Ashwini is the first nakshatra occurring in the first sign Aries, especially 7 degrees से, और I should say 6 degrees से पहले वाला अगर आपके पास Ashwini nakshatra है, अगर आपका जो sun है it's in the earlier degrees of this Ashwini nakshatra, before 6 degrees, you and your father are very athletic. You guys are the people who can be very good at running, very athletic, very competitive, very aggressive. After 6 degrees of Ashwini, what happens is still the person wants to be athletic and is athletic, but इतना ज़्यादा नहीं. The sports person होते हैं, they have a very strong Ashwini nakshatra or Satvishak nakshatra and even Chitra nakshatra. So basically it's the nakshatra of horses, और horses के जो lower body है, legs जो है वो बहुत ज़्यादा strong होते हैं, तो it shows that you and your father, because sun represents father, so and sun is the natural atma karka as well, so you and your father both can have stronger lower body than the upper body. Upper body can be a little weak, whereas the lower body is very strong. The collarbones can be weak. You guys are the people who will walk fast, talk fast, eat fast. You guys would want to have a princess-like spouse or prince-like spouse. You guys are the people जो दूर से opportunity को देख लेते हैं and you jump
You jump in that in those situation or opportunities because you think कि अगर मैंने ये opportunity अभी grab नहीं करी तो ये opportunity मेरे हाथ से निकल जाएगी, and then आपके पास 10 चीज़ें इकट्ठी हो जाती है जिनमें से सिर्फ आप 4 complete कर पाते हो. That happens here. At the same time, you and your father can be the people who can have ENT issues, eyes, nose, throat issue, or you guys can even become ENT doctors. But most of the time, an Ashwini person deals with sinus issues, tonsil issues, ENT issues. That happens. And especially when moon transits the Ashwini nakshatra, you and your father can deal with blocked nose that day. Let's say your sun is placed in the Taurus sign. So in Taurus, we have the nakshatras like Kritika, Rohini, Mrigasira. So let's say your sun is placed in the Rohini nakshatra. Rohini is a nakshatra where moon get exalted because Chandra or moon is very sensual and sexual in nature. He had 27 wives and Rohini is his favorite wife. So sun being in Rohini shows that you and your father wants to be in luxuries. You and your father loves music as well, singing. You and your father are the people who can be the devotees of this can be the devotees of Nagas. Basically, I have one of my friend having Rohini, Ashlesha and Mrigasira nakshatra, and she told me that her ancestors and even in their family right now also they preach this Kamru Nag, Kamru or Kamru Nag. So somehow you guys can even be related to that, your ancestors can be related to this deity and you can worship some Nagas. That can even happen because Rohini is a Naga rule nakshatra. And it also shows you and your father are the people who want best of best. You guys want to drive a very luxurious vehicle, a big home. You guys also love fragrances, luxuries. These things becomes very important for you guys. Luxuries becomes very, very important for you guys. You want to enjoy your life on this Bhumandala. Let's say your sun is placed in the Gemini sign, and in Gemini we have the nakshatras like Mrigasira, we have the nakshatra of Ardra and Punarvasu. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Ardra. Ardra is the nakshatra of Rudra, which is the fierce form of Shiva. So it shows that अगर गुस्सा आपके और आपके फादर को आता है, वैसे तो बहुत कम आता है, पर जब आता है then it's like a storm. It's like a storm. तब तो बस तूफान ही आ जाता है, पहाड़ी टूट जाता है. बेसिकली वैसे गुस्सा नहीं आएगा, पर जब आता है तो बहुत आता है. And it also shows that you and your father early on got rejected by your classmates, by your friends, and you wanted to play with them, you wanted to have a good time with them, but they rejected you somehow, and then you started to live alone or you started to spend time alone. और कहीं ना कहीं वो आपकी एक पर्सनैलिटी भी बन गई ऐसी कि आपको अकेला रहना ही फिर अच्छा लगने लगा. You guys can even would want to adopt exotic pets like a monkey or something. There will be this tendency to adopt pets जो कि domestic नहीं हैं, जो wild हैं. And it also shows that you and your father can also be the people who are quite interested into climate. You guys can even quite a lot will talk about climate और will Google कि आज weather कैसा है. ये चीज़ों पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा because Ardra is the nakshatra of a storm. और कहीं ना कहीं there are people who are working into weather like in the area or I should say weather department में भी जो लोग होते हैं they have the nakshatra of Ardra, and many storm chasers also comes from Ardra nakshatra. But yes, you guys can be the people who talk a lot about weather or can Google a lot about weather. Let's say your sun is placed in the sign of Libra, and in Libra we have the nakshatras like Chitra, Swati, Vishaka. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Vishaka. So Vishaka is an Indra rule nakshatra again. You and your father are the people who want to live a very luxurious life, who want to bring heavens on earth. You guys want the best of best that's there, and you want to win at any cost and at all costs. And especially you guys will have
a big sexual appetite. I mean, you and your father both will have a big sexual appetite, and somehow you're going to connect to your sexual things after the age of 32. I mean, before as well ye cheez ho sakti hai, but more so the sexual act become more dominant as you get towards your mid 30s, like 35, 36. You somehow open, or I should say you somehow tap into that sexual realm and you get so much into it. But yes, the sexual activity become very important for Vishakha. The sexual need or the sexual appetite of you guys is quite big for sure, because Indra had many females in his darbar, and Indra in our Vedas, Indra, Bhaga, Varuna, and even Agni, the Lord Agni, were very into sexual acts, very much into sexual activities. ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया और आई फील टीवी पर नहीं दिखाई जाती होगी, बट इफ़ यू रीड वेदास इट इज़ देयर many stories of Varuna and especially Agni and Indra. Agni and Indra are there. मीनिंग कृतिका और विशाखा नक्षत्र पे बहुत सारा टेक्स्ट है वेदास में जो आप सीख सकते हो, विच यू कैन नॉट रियली लर्न फ्रॉम दी एस्ट्रोलॉजी बुक्स, बट you can learn from Vedas. So that's there. So let's just get started with the reading here. यहाँ पर आपका जो करियर है 2022 में कैसा रहता है, क्या चीज़ें आपके करियर से रिलेटेड हो रही है in the year 2022. Alright, so we have Knight of Wands. You're enthusiastic, you are very optimistic, you are, again the thing is you are very motivated to get to 2022 and work. So that's there. And then I see 7 of Coins. You're doing a lot of hard work as well, and you want to be productive, that I see. And then we have Page of Cups. All cards this time are upright, which is beautiful. So first I want to come to this Knight of Wands. So the first card in tarot always talk about the current emotion, the current energy you have, और near past में जो आपके चीज़ें हुई उसके बारे में जो है फर्स्ट कार्ड टैरो का बताता है जो हम पुल करते हैं. तो जो ये Knight of Wands है, it's a very quick energy. It's not as quick as Knight of Swords, but still ये quick energy है. कहीं ना कहीं उतावलापन है कि 2022 कब आएगा और मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो हूँ, और आई शुड से your energy right now is very motivated. You want to do work, you are very productive, you are very motivated, and this time as well जब भी आप ये reading देख रहे हो, you want to even become more motivated. So you guys can even read some self-help books or can read some quotes or can watch some videos which makes you feel motivated, which makes you motivated. So कहीं ना कहीं यहाँ पर motivation काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, उतावलापन है, कहीं ना कहीं creative जो आपके अंदर spark है इस particular time पर काफ़ी ज़्यादा, और यही energy के साथ आप 2022 में enter करना चाहते हो और करते हुए नज़र आ रहे हो. एक creative fire आपके अंदर नज़र आ रही है, एक action oriented energy जो है अभी आप में आपको अपने आप में फील हो रही होगी, और कहीं ना कहीं आप ये फील करना भी चाहते हो, मोटिवेटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हो. 7 ऑफ कॉइंस जो है यहाँ पर शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं हार्ड वर्क से डर नहीं रहे हो इन द ईयर 2022. आप अपना फुल एफर्ट यहाँ पर डालना चाहते हो इन द ईयर 2022 और डालते हुए नज़र आ रहे हो. ये नहीं है कि वक्त ज़्यादा हो गया है तो अब मैं काम पैक करके चल रहा हूँ. नो, यू आर लाइक कहीं ना कहीं आप ओवर टाइम काम कर रहे हो एट योर वर्क एंड यू आर मोटिवेटेड, यू वांट टू गेन इन योर लाइफ. सो कहीं ना कहीं अगर आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है बिकॉज ऑफ वर्क, तो आप उसको लेकर ऐसे दुखी नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे हो, आप काफ़ी मोटिवेटेड रहकर काम करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड 7 ऑफ कॉइंस ऑल्सो शोज स्लोनेस, और आई शुड से स्लो मूवमेंट. कहीं ना कहीं जो आपका काम है इन द ईयर 2022 आपसे काफ़ी हार्डवर्क मांगने वाला है, और अगर आपने हार्डवर्क करा है, अगर आपने बीज बोया है, उसका फ्रूट और उसका प्लांट ज़रूर निकलेगा. तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस हो सकती है इन द ईयर 2022 फॉर यू जहाँ पर करियर थोड़ा स्लो चले. आप मोटिवेटेड आप पूरा अपना हार्डवर्क डाल रहे हो, पर डेस्टिनी जो है वो कुछ ऐसी है कि आप
आपको रिजल्ट थोड़ा स्लो मिल रहा है, बट यहाँ पर यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स शो करता है बिकॉज कॉइन्स पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होती है, बट इट्स द अर्थ एनर्जी, यानी कि अर्थ पर रिसोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अर्थ ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ यहाँ पर है पर थोड़ी स्लो ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। पूरा अपना एफर्ट यहाँ पर डालते हुए नज़र आ रहे हो, बट अगर आपको रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है या लाइफ वैसे ही चलेगी। नो, यहाँ पर इन द ईयर 2022 आप अपने पूरे एफर्ट डालो, आप अपना पूरा हार्ड वर्क करो, आपको गेन्स उस अकॉर्डिंग होंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिले हो सकता है, इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर करियर, अगर आप जो हो करियर वाइज कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस टैरो की तरफ से ये आ रही है, जो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो वो काम करो। शॉर्ट टर्म शॉर्ट गेन्स, चीज़ें फिक्स करना, जुगाड़ करना, इसकी बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज तक जाओ और फिर उसे फिक्स करो, ठीक करो, और आप वो काम यहाँ पर करो जो काम आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। शॉर्ट गेन्स की तरफ मत जाओ। स्टॉक मार्केट या जहाँ पर क्विक गेन्स होता है उसकी आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है। यहाँ पर आपको अपना हार्ड वर्क जो है वो एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट आएगा। और 7 ऑफ कॉइन्स जो है वो भी यही शो कर रहा है कि यहाँ पर शॉर्टकट नहीं लेना है। द बेस्ट शॉर्टकट यू कैन टेक इज टू टेक द लॉन्ग कट। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। यहाँ पर आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक आप यहाँ नजर आ रहे हो, डोंट वरी। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचते हो कि मेरे को क्विक गेन्स मिल जाएं, स्टॉक मार्केट से मिल जाएं, और या फिर यू डू सम अदर वेज टू अर्न मनी क्विकली, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी आपके लिए इन द ईयर 2022। ऐसा हो सकता था कि वो पहले आपके लिए वर्क करती हूँ, स्पेकुलेटिव गेन्स, स्टॉक मार्केट से गेन में भी आपके लिए पहले वर्क करते हो, बट इन द ईयर 2022 पाइल नंबर 2 यहाँ पर बेसिकली गाइडेंस या इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ लॉन्ग कट आपको लेना पड़ेगा और लॉन्ग कट के थ्रू आपके पास मनी आएगा, शॉर्टकट से नहीं आएगा। और जुगाड़ नहीं करना है, रूट कॉज तक जाकर उस चीज़ को फिक्स करना है। एंड अगेन ऐसा काम चूज़ करना है, ऐसा काम पिक करना है जहाँ पर आप जो हो लॉन्ग टाइम तक काम कर सको बिना थके। यहाँ पर आपका मन भी लगा हुआ है अपने काम में, सो डू नॉट वरी। यहाँ पर आपका मन लगा हुआ है जो भी आप काम कर रहे हो। अगर आप एजुकेशन में हो, एजुकेशन में आपका मन लगा हुआ है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप काफ़ी मोटिवेटेड हो। अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो भी आप यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक मोटिवेटेड नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो और अपना एफर्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और उन एफर्ट्स के थ्रू आपको यहाँ पर गेन्स हो रहे हैं। थोड़े स्लो गेन्स बेशक हो सकते हैं, पर गेन्स हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेट मी जस्ट मास्टर कार्ड फॉर यू। पाइल नंबर 2 का जो ये 2022 है इन टर्म्स ऑफ करियर, ये कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, धार्मा। वक्त बदल रहा है, आपका वक्त बदल रहा है, एक बुरे समय से अच्छा समय यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर आपको गेन्स नहीं हो रहे थे वहाँ पर गेन्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स द कार्ड ऑफ धार्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून, धार्मा। कहीं ना कहीं जो वो एक आप एक धार्मिक पाथ फॉलो कर रहे हो, वो वाला पाथ फॉलो कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके हाईएस्ट धार्मा को रीच करेगा। कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है लाइफ का उसको रीच करेगा आपका काम। जो भी आपका पर्पस है लाइफ का, उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन द ईयर 2022 काम करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी आपका पर्पस है लाइफ का, वो आप उसकी तरफ स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पर्पस है कि हमने ये बिज़नेस जो है शुरू करना है, बट उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो हम जॉब करते हैं कुछ टाइम या हम कुछ और चीज़ें करते हैं और फिर मनी गेन करते हैं और उसके बाद हम अपना वो बिज़नेस खोलते हैं, बिकॉज दैट बिजनेस इज काइंड ऑफ लाइक अ पर्पस ऑफ माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर। वो मेरा धार्मा भी, आई फील दैट। देन आप वो चीज़ यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपके पास वो कैपिटल नहीं थी वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, देन इन द ईयर 2022 वो कैपिटल आपके पास यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर पर्पस ऑफ लाइफ, यू आर डूइंग योर एफर्ट्स
व्हेन इट कम्स टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि कई बार हम एफर्ट भी नहीं कर पाते, हम बस सोचते रहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, ये हमारा पर्पस है लाइफ का, हम सोचते रहते हैं। बट इन द ईयर 2022 आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करते हुए ही नज़र आ रहे हो। कुछ ना कुछ जो भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है टू एक्सपैंड योर करियर, टू एक्सपैंड योर बिजनेस, यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है या क्या गाइडेंस है उस सक्सेस को पाने के लिए 2022 में, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस है? पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव होम हियर, वर्क फ्रॉम होम, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस। घर जो है कहीं ना कहीं आपको सुकून भी देता है, या फिर कहीं ना कहीं घर से आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, दैट आई सी। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर कोरोना वायरस वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, तो जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो आप काफ़ी प्रोडक्टिव होते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप, ऑल राइट, इट ऑल्सो शोज बिजनेस पार्टनरशिप. So if you wanted to start a business with your friend, or if you wanted to start your business and your friend is also very interested, then you can even start your business with them. Basically having a business partnership with them. I do see friends आपको काफ़ी support यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर आपके कज़न्स या जो भी लोग जिनको आप कंसिडर करते हो अपना दोस्त, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बट जो भी जिसको भी आप अपना दोस्त कंसिडर करते हो वो आपको काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं। एंड फैमिली से काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। कहीं ना कहीं फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करी है, योर फैमिली कैन इवन बिकम योर फ्रेंड, तो वो चीज़ भी यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। फैमिली से फुल सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम आप यहाँ पर कर सकते हो और उससे आपको गेन्स यहाँ पर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स की तरफ से भी काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ लेकर आनी चाहिए, कौन सी बुरी चीज़ें अपने से निकालनी चाहिए टू गेन सक्सेस, टू हैव दैट बिग सक्सेस इन योर करियर, क्या गाइडेंस है यहाँ पर? All right, so we have death here, which shows I am learning that endings are merely beginnings. You know, when this card came, when I pulled this card, home card, I felt कि कुछ आप में से जो हो अपनी जॉब को छोड़ रहे हो, नई जॉब में भी आप ज्वाइन करो, या फिर जॉब ही आप ज्वाइन ना करो, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो। बट मैंने वो चीज़ बताई नहीं। आई शुड हैव टोल्ड दिस थिंग, आई शुड हैव सेड दिस थिंग, बट मैंने नहीं कही, वो मेरे मन में ही रहेगी बात। और यहाँ पर डेथ कार्ड भी आ गया, विच इज़ शोइंग एंडिंग। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर म्योरली बिगनिंग्स। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हो अपना काम भी बदल रहे हो, अपनी जॉब बदल रहे हो, मे बी आप जॉब से बिजनेस में आ रहे हो या फिर बिजनेस से जॉब में जा रहे हो। समहाउ यू आर लीविंग समथिंग, कोई चीज़ आप बदल रहे हो, कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो, मतलब करना ही छोड़ दी, वो काम ही करना छोड़ दिया, वो कंपनी, वो जॉब ही छोड़ दी और एक नई कंपनी या फिर एक नया बिजनेस शुरू करा। वो चीज़ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपके पास कैपिटल नहीं थी, उस कैपिटल, उस मनी को लाने के लिए जो आप काम करते थे वो आप यहाँ पर करना बंद कर रहे हो और एक नया काम यहाँ पर आप शुरू कर रहे हो। वो ड्रीम वर्क जो आप करना चाहते थे, वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते थे, वो यहाँ पर आप करते हुए इन द ईयर 2022 नज़र आ रहे हो। यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको और कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर डालनी चाहिए या फिर निकालनी चाहिए? सो वी हैव परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार जो बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ कॉइंस विच शोज कि थोड़ा यहाँ पर डिले, थोड़ा यहाँ पर स्लो आपका काम चल सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पर आपके एफर्ट्स जो हैं वो रिजल्ट, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट थोड़ा यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि परसिवरेंस कार्ड में है कि आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू, सो हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव दैट यू नो, वो विश्वास अपने अंदर रखो और ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, हैव परसिवरेंस, दैट्स द गाइडेंस हियर। और यहाँ पर जो है, ये तो आपके लिए मैसेजेस थे। मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल आंसर्स से जो है इस डेक से भी आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी और आपको एक कार्ड अपने लिए पिक करना है। ऑलराइट, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे इस एंजल आंसर्स डेक से। आपने अपने मन में क्वेश्चन जो है वो रखना है, सोच लो क्वेश्चन
और फिर अपना कार्ड पिक करना. सो फर्स्ट कार्ड इज दिस, सेकेंड कार्ड इज दिस, एंड थर्ड कार्ड इज दिस. ऑलराइट, सो आप पॉज कर सकते हो अपनी ये वीडियो और उसके बाद आराम से अपना कार्ड पिक करो, चूज़ करो कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, ऐसे कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है आपको अपनी तरफ कार्ड. अपना क्वेश्चन अपने मन में रेडी रखो. तो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3. सो मैं पिक कर रही हूँ कार्ड नंबर 1. आपके लिए क्या मैसेज है? All right, listen to your intuition. So this is the message for you, this is the guidance for you कि आपने अपनी intuition जो है उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना है. कई बार हमारा analytical logical skill जो है कई बार हमें ओवर एनालाइज करने पे मजबूर कर देता है और फिर उसके बाद डिसीजन हमसे लिया ही नहीं जाता है या फिर हम लेना ही नहीं चाहते हैं. तो वो सिचुएशन हो जाती है. यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी इंटुइशन से जो हो अपना आंसर, बेसिकली आप अपना डिसीजन लो, अपना आंसर अपने इंटुइशन के बेसिस पर दो. दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स द गाइडेंस और दैट्स द मैसेज फॉर यू. कार्ड नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज, येस या नो, क्या चीज़ आ रही है? देयर समथिंग बेटर. इट्स अगेन अ वेरी सिंपल लाइन बट बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में लेकर आ सकती है. दैट जो भी आपके मन में सवाल था उसका जवाब है देयर इज समथिंग बेटर. देयर इज समथिंग बेटर. इससे अच्छी कोई चीज़ है या इससे अच्छा कोई पर्सन है. देन आपके लिए यहाँ पर जो ये थर्ड कार्ड है, क्या आपके लिए मैसेज है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा टैरो से उसका आंसर है कि आप जो हो कुछ ही वीक्स में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा या फिर कुछ ही वीक्स में जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा या समहाउ समथिंग इज गोना हैपन आफ्टर फ्यू वीक्स. जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो चीज़ हो रही है. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था, जो भी आपका सवाल था उसका जवाब जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स है. वो चीज़ आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है. ऑल राइट, पाइल नंबर 2. सो ये आपके लिए आंसर्स थे, ये आपके लिए मैसेजेस थे. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पाइल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेडिक्शन, हाउ इट resonates, and do like this reading and subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, then I also do personal reading, Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can get all the information about my readings and you can book yourself a reading via my website. The link is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the blue stone here and yes. So your sun is placed in the Tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius. So let's say your sun is placed in the sign of Virgo, and in the Virgo sign we have the nakshatras like Uttar Falguni, Hasta and Chitra. So let's say your sun is placed in the Chitra nakshatra. Chitra is the nakshatra of celestial architect and celestial accountant, Vishwakarma and Chitragupta. So you and your father can be the people who can be very good at budgeting. You guys are the people जो पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छा रख सकते हैं कि किसको मैंने कितने पैसे दिए थे, किससे मैंने कितने पैसे लेने. You guys can be also interested into UX, becoming a UX UI designer, because Chitra, right? Chitra, drawing, to build something. So it's even about building a website. You can even become a person जो UX UI डिज़ाइनर तो बन सकता है, वेबसाइट क्रिएटर, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप कर सकते हो. इन चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हो. यू कैन ऑल्सो बी गुड एट ड्राइंग, दैट कैन इवन हैपन. यू गाइज नो द कलर पैलेट, ब्राइट कलर्स आपको अच्छे लग सकते हैं यहाँ पर चित्रा में. बट मोर सो इन द वर्गो साइड, अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन टू अकाउंट्स or accountancy or becoming a CA, because Virgo is the sign of your practical work, and it's the sign of services, giving services. It's about jobs, it's about doing repetitive things. Whereas जो UX UI designer है, color palettes, drawings, this is kind of a Venusian energy. So Chitra also occurs in the sign of Libra, which is ruled by Venus. So
डिजाइनिंग वगैरह चित्रा इन लीब्रा में आ जाता है, बट मोर सो चित्रा स्टिल कैन गिव टेंडेंसी, कैन मेक यू अ वेरी गुड आर्टिस्ट, कैन मेक यू अ पर्सन हु पेंट्स really well or draws really well. But yes, here sun being in the Virgo side of Chitra, you and your father are great accountants or can budget things very well. Then if your sun is placed in the Scorpio sign, we have the nakshatras like Vishaka and the nakshatras like Anuradha and Jyeshtha. So let's say your sun is placed in the Anuradha nakshatra. You and your father can, early in life, you guys can be the hopeless romantics as well. You guys can get into relationships and that person you get in relationship with leaves you. You want to spend your life with them, but they somehow leaves you and you kind of, it kind of breaks your heart. Big time heartbreaks. Especially if you're a male watching this reading, you get so much connected into your person that you can even become obsessed with them. Females के केस में थोड़ा कम देखा है मैंने कि with Anuradha Nakshatra as well, they don't get obsessed with a person. Yes, they deeply fall in love, but male Anuradha become kind of obsessive. They become. But yes, with sun in Anuradha or even moon in Anuradha can show that you guys can have a breakup, a very painful breakup here. And it can even show that you and your father are Krishna devotees. You guys will also read Bhagavad Gita no matter what your religion is. But you will read Bhagavad Gita for sure. You will, and some of you will also be very much connected to ISKCON. So that's there. And let's say your sun is placed in the sign of Capricorn. In sign of Capricorn, we have the nakshatras like Uttara Ashada, Sravan and Dhanishta. So let's say your sun is placed in the Sravan nakshatra. Sravan is a nakshatra about advising, counseling and hearing other people's problem. So somehow you and your father will do a work where you guys listen to other people's problem and then you give them advice. You can even become a financial advisor or life coach as well. You guys can hear and learn things. If you are into education, you can get audiobooks, and when you listen, you can retain that information more than writing. मतलब writing लिख कर याद करना may not be your forte, may not be the thing which makes you remember or makes you get that information in your long-term memory. Basically, it's about hearing and advising. It's about hearing and learning. So कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ सुनते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा better याद रहती है. Then if your sun is placed in the Aquarius sign, and Aquarius is again a Tamasic sign because it's ruled by Saturn, we have the nakshatras like Dhanishta, Satabhishak and Purva Bhadrapada. So let's say your sun is placed in the nakshatra of Satabhishak. So Satabhishak is the nakshatra, a Valmiki nakshatra, I would say. You and your father can also be the devotees of Valmiki, Rishi Valmiki, and you guys will go through kind of a phase in your life जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पर कलंक हो सकते हो. That can happen. And then आप बहुत से एफर्ट करते हो उस कलंक को हटाने के लिए, and you gain a very powerful position in society. That can happen because Rishi Valmiki also did something in their childhood जिसकी वजह से उनके नाम पर कलंक लग गया था, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, बहुत चीज़ें करी, बहुत मेहनत करी, बहुत ऑर्गेनाइजेशन और आई शुड से बहुत लोगों की सेवा करी, एंड उसके बाद उनके ऊपर से वो, उनके नाम से वो कलंक हटा, एंड देन ही बिकेम द ऋषि वाल्मीकि. सो इट शोज दैट अर्ली इन लाइफ यू कैन गो थ्रू अ फेज जहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म बहुत फेस करने को मिले, यू एंड योर फादर बोथ, बट उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आते हो और बहुत एक हाई पोजिशन आपको मिल सकती है इन गवर्नमेंट और इन सोसाइटी इटसेल्फ. And people are going to respect you later in your life. You and your father will also have stronger lower body than your upper body. Weak collarbones, but the lower body will be very strong. You guys will also be obsessed with your hairstyle at least once in your lifetime. So that's there. So let's just get started. यहाँ पर आपका जो year 2022 है, ये कैसा रहने वाला है in terms of career.
क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इन 2022 इन टर्म्स ऑफ योर करियर. Okay, this card wants to come out. So we have 3 of wands. All right, and then I see 3 of coins. Okay, pile number 1 में भी I think ये 3 of coins आया था, but तब reverse में था. Then we have the devil in reverse. All right, so जो first card होता है tarot में जो हम pull करते हैं, it represents the current situation या फिर near past को represent करता है. आपके नियर पास्ट का, आपके करंट सिचुएशन को. कहीं ना कहीं जो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ शोइंग कि स्टेग्नेशन आना, रुक जाना, जहाँ पर भी आप हो, आगे ना बढ़ पाना, कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी यहाँ पर आप फील कर सकते हो राइट नाउ और इन द नियर पास्ट. कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, यू वॉन्ट टू मूव अप, बट अगेन डीमोटिवेटेड फील करना और कहीं ना कहीं अपने पर्पस ऑफ लाइफ से भटक जाना, एफर्ट नहीं करना और मन ना लगना उस सिचुएशन को शो करता है. आई मीन इन योर करियर कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लगा हो, आप कोई और काम करना चाहते हो, आप मोटिवेटेड अपने करियर से, करियर रिलेटेड नहीं नज़र आ रहे हो, थोड़ा डीमोटिवेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन यानी जो ग्रोथ है प्रोफेशन वाइज जो होनी चाहिए ग्रोथ, वो हो नहीं पा रही है, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. यहाँ पर जो है आप ये चाहते हो कि 2022 में आप ग्रोथ करो, ऑफ कोर्स आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, आप नई चीज़ें सीखो, बट आई डू सी बिकॉज वी हैव 3 ऑफ कॉइंस, कहीं ना कहीं इन द ईयर 2022 आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है जहाँ पर आप एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हो और उस ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आप नई चीज़ें सीख रहे हो, आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है अपने कोवर्कर्स से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से, अपने बॉसेस से. समहाउ यू आर गेटिंग द सपोर्ट इन द ईयर 2022 और उस सपोर्ट से जो हो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने अराउंड. जो सिचुएशंस है वो आपकी फेवर में होती हुई नज़र आ रही है, लोग आपकी फेवर में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हो इन द ईयर 2022 एंड दिस ईयर फॉर यू पाइल नंबर 3 इज ऑल्सो गोना बी द ईयर वेयर यू गाइस, सम ऑफ यू कैन इवन गेट योर MBA. मतलब हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आप जाना चाहते थे देन दिस ईयर इज़ वेरी गुड एंड सम ऑफ यू विल कंप्लीट योर हायर एजुकेशन इन द ईयर 2022. बट आई डू सी कि कोई चीज़ आप लर्न कर रहे हो या फिर कर जाओगे, लर्न कर जाओगे इन द ईयर 2022. आई सी हायर एजुकेशन हेयर, कहीं ना कहीं कंप्लीशन या फिर आप एंटर कर रहे हो हायर एजुकेशन में, MBA या फिर मास्टर्स, PhD, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड हेयर वी हैव द डेविल इन रिवर्स विच इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं अगर ये एडवाइस के लिए कार्ड है, जो थर्ड कार्ड है ये एडवाइस के लिए है बिकॉज द डेविल इज़ इन रिवर्स. तो कहीं ना कहीं आप जो हो जो चीज़ आपको टेम्प्ट करती है, हमारी टेम्पटेशंस राइट, जो हमारी टेम्पटेशंस है उसके पीछे मत भागो. ये साल जो है आप लर्न करो चीज़ें. दिस ईयर इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू प्रोफेशनली, स्टार्टिंग योर बिजनेस और समथिंग. नो, दिस इज़ नॉट द ईयर. दिस इज़ द ईयर वेयर यू लर्न समथिंग, where you feel more motivated and where you learn something new, where you get the support from other people, from your co-workers or from your bosses या फिर आपके classmates से आपको support मिलना, learn करना. बट जो ये डेविल कार्ड है ये रिवर्स में आया है, शो कर रहा है कि आपने अपनी टेम्पटेशंस पर नहीं जाना. जो कई बार हम कहते हैं कि ये तो हमारा मन कर रहा है तो ये हम कर ही लेते हैं, और वेयर एज दिमाग कहते हैं कि ये चीज़ मत करो क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है. लॉन्ग टर्म की सोचो, क्या ये चीज़ लॉन्ग टर्म में मुझे काम आएगी, उससे रिलेटेड या उसके रिगार्डिंग फिर आपने जो है स्टेप लेना है. आपने अपनी टेम्पटेशंस में बह नहीं जाना है. सो यहाँ पर गाइडेंस भी यही है कि लालच में आके कोई काम नहीं करना है, लालच में आके कोई काम नहीं करना है, जोश में होश नहीं खो बैठना है. और कहीं ना कहीं द डेविल इज ऑल्सो शोइंग कि जो आपके आंखों के आगे जो इल्यूजन्स थे या जो आप इल्यूजन्स मन में भी जो थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द ईयर 2022. काफ़ी रियलिज्म लेकर आएगा आपके लिए पाइल नंबर 3 2022. रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. जो ड्रीमी सिचुएशंस होती है, जो हम तो ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, तो वो जो ड्रीम्स है या तो उनमें प्रैक्टिकलिटी आ रही है या फिर वो ड्रीम्स आप जो हो कहीं ना कहीं
you feel that those are illusions. प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी है और प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये ही काम करना चाहिए, इसी से मुझे गेन होगा, तो वैसी सोच विचार, वैसे थॉट्स आपके अंदर चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन द ईयर 2022. और गाइडेंस भी है, अपनी टेम्पटेशंस में मत आना, मत पढ़ना, थोड़ा सो जाता हूँ, आलस है, क्या हुआ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, नो 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 नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. जो लथार्जी है, लेजीनेस, उसको भी डेविल यहाँ पर शो करता है नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स. तो आप अपनी टेम्पटेशंस में जो है नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हो, और गाइडेंस भी यही है कि लेजीनेस, लथार्जी, वो चीज़ नहीं करनी है, कहीं ना कहीं वो आपका काम स्लो कर रही है. ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, क्लीशे है, बट अगेन यही एक तरह से गाइडेंस है और यही आपको चीज़ आगे भी लेकर जाएगी अगर आप इन टेम्पटेशंस में नहीं पड़ते हो तो, क्योंकि यही एक रास्ता है. सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए 2022 जो है सपोर्ट लेकर आ रहा है, एजुकेशन लेकर आ रहा है, इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, मोटिवेशन लेकर आ रहा है. अपनी आपके अंदर जो इल्यूजन्स थे, जो आपके सामने इल्यूजन्स थे, जो मन के अंदर इल्यूजन्स थे, वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं. ऑप्टिमिज्म आ रहा है, रियलिज्म आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी आ रही है. तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है. यहाँ पर आपके लिए मास्टर कार्ड भी हम निकालेंगे, पाइल नंबर 3. जो ईयर 2022 है उसका थीम, क्या चीज़ें हो रही है फॉर द ईयर 2022 फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर. ऑलराइट, सो वी हैव द स्ट्रेंथ, और एक और कार्ड भी निकल आया है, वी हैव द हेरोफेंट एज वेल. सो हेरोफेंट इज द एनर्जी ऑफ लक, फॉर्चून एज वेल. इट्स द सैटर्न एंड जुपिटर. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स वेज हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे. यू आर गोना ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. यहाँ पर स्ट्रेंथ में वी हैव द एलिफेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम टेरो में अगर आप देखो स्ट्रेंथ कार्ड पर एक लायन बना होता है, बट इन दिस वी हैव एन एलिफेंट. तो इट इज ऑल्सो शोइंग द नक्षत्रास लाइक भरणी एंड रेवती. I know this is the Thamasic pile. जो Bharani it occurs in the Aries and Revati occurs in the Pisces. Rajasic और सात्विक sign है. But still आपका मून या फिर आत्मकार का the planet holding the highest degree in your chart or your ascendant lord basically your lagna lord your arudha can be in the nakshatra of Bharani और रेवती. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर because Bharani is about breaking the norms, breaking the regulations, breaking the फ्लो हेयर एंड मूविंग समवेयर एल्स. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते थे, वो ट्रैवल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है. एंड समहाउ यू आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स और यू आर ब्रेकिंग समथिंग लाइक यू कैन इवन ब्रेक द चेन ऑफ पॉवर्टी इन योर फैमिली. यू कैन एक्चुअली दिस ईयर डू दैट. बट वॉट आई सी इज कि कहीं ना कहीं बिकॉज वी हैव द हेरोफेंट, सैटर्न और जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है हेरोफेंट. सैटर्न जो है ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है, बट सैटर्न रिबेलियस भी है एट द सेम टाइम. तो समहाउ यू आर गोना रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी, यू आर गोना ब्रेक द नॉर्म, ब्रेक द फ्लो. जो जिसमें आप काम कर रहे थे, जो फ्लो ऑफ वर्क था, वो आप यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो. कोई नया रूटीन आप यहाँ पर शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज़ यहाँ पर आप करते हुए नजर आ रहे हो. स्पेशली बिकॉज जुपिटर की भी यहाँ पर एनर्जी है. जुपिटर इज आई मीन इट रूल्स द 9th हाउस विच शोज हायर एजुकेशन. 9th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फिलोसफी. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपना काम छोड़ के एजुकेशन की तरफ यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हो. इसके काफ़ी इंडिकेशन है. एंड इवन इफ यू आर नॉट रेडी गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, स्टिल एक लर्निंग ईयर रहने वाला है 2022 आपके लिए. और कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन आप ब्रेक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, नई चीज़ आप अडॉप्ट करते हुए नजर आ रहे हो. स्ट्रेंथ कार्ड जो है इट इज़ शोइंग कि आप जो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो. दैट्स द गाइडेंस. एंड सम ऑफ यू कैन इवन लाइक अगर आप पुलिस में जॉब करना चाहते थे, अगेन पुलिस जो है लॉ इन्फोर्समेंट कराती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की अगर आप जॉब करना चाहते थे उसके लिए यहाँ पर यस आ रहा है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो. यू कैन गेट दैट टू. सो ये यहाँ पर है. बट आई डू सी के समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब कैन इवन हैपन फॉर यू, पाइल नंबर 3 दिस 2022. बिकॉज अगेन लॉ इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए हो रही है. यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है
अपने करियर को एक्सपैंड करने की, अपने बिजनेस या अपनी एजुकेशन जॉब को एक्सपैंड करने के लिए, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए इन टर्म्स ऑफ करियर क्या गाइडेंस है? All right, so we have answers here. Okay, you are getting the answers which you were trying to find. जो जवाब आपको नहीं मिल रहे थे मिलते नज़र आ रहे हैं. Then I see confidence. All right, have confidence in yourself again. ये जो strength card है, अपने ऊपर विश्वास रखो, trust the process, have confidence in yourself. And this strength card also talks about being polite. अपना ओपिनियन ज़रूर रखो दूसरों के आगे, बट बहुत पोलाइटली रखने की यहाँ पर बात है. वो अपना ओपिनियन, वो अपना ऑप्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट. हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. पाइल नंबर 3 जो आंसर्स का कार्ड है, इट इज़ डेफिनेटली शोइंग कि यहाँ पर आपकी तरफ आंसर्स आ रहे हैं, आपकी तरफ वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ रही है. स्पेशली ये जो डेविल कार्ड है, इट इज़ इन रिवर्स. डेविल जो है इल्यूजन्स को शो करता है, जो चीज़ें सच में नहीं हैं उसको शो करता है, टेम्पटेशंस को शो करता है, और चीज़ें जब अनक्लियर होती है उसको शो करता है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर आप अनक्लियर थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए आंसर्स भी आएंगे इन द ईयर 2022. सो अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, रिसर्च वर्क कर रहे थे, उसका आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा. जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसके आंसर्स यहाँ पर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आपको अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ लेकर आनी चाहिए, या कौन सी क्वालिटीज़ को पॉलिश करना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ों को अपने मन से निकाल देना चाहिए टू रीच दैट सक्सेस. All right, so we have worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. सो अगेन ये जो वरी का संस्कार है, जो वरी का इमोशन है, ये आपने अपने अंदर नहीं लेकर आना. जो चीज़ जो है हो चुकी है आप उसे बदल नहीं सकते, आप अपना पास्ट नहीं बदल सकते. फ्यूचर के लिए आप एफर्ट ज़रूर कर सकते हो. पाइल नंबर 3 तो हम सभी के लिए क्लीशे बात है, बट स्टिल इट्स द रियलिटी. इट्स बेसिकली द राइट वे एज वेल. आपने वरी नहीं करना है, आपने जो है इट्स अगेन अबाउट लर्निंग. इट्स अगेन सेइंग आई एम लर्निंग that worry doesn't change an outcome. So again you are learning this thing. आप लर्न कर रहे हो कोई ना कोई चीज़, एंड वन ऑफ देम इज़ कि आप वरी करना छोड़ रहे हो, और वरी करने से आउटकम नहीं बदलने वाला. दैट्स ऑल्सो द मैसेज फॉर यू. यहाँ पर आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन है? ओके, सो वी हैव ब्लेम हियर. I accept responsibility for my well-being. At times we start to play this blame game कि तुमने ऐसा करा था, तुम्हारी वजह से ऐसा है, but we don't realize कि हम और mess create कर रहे हैं और हम responsible नहीं हो रहे हैं. Whereas responsibility लेना ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू कि जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. स्पेशली जो हेरोफेंट कार्ड है, एज अ टोल्ड यू, इट्स रूल्ड बाय सैटर्न एंड जुपिटर, स्पेशली जुपिटेरियन साइन. तो सेजिटेरियस को जो है जुपिटर रूल करता है, सेजिटेरियस जो, और पाइसिस को भी जो है जुपिटर रूल करता है. जुपिटर इज़ द प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर it's again about learning, you going for higher education, learning something, getting a mentor in the year 2022. You can get a mentor. At the same time, Jupiter is said to be the heavy one. You take any book, whether it's Varamira, whether it's Phaldipika, it's always written that Jupiter is the heavy one. So कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए 2022 में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली है, जिसको लेकर आप थोड़ा हैवी महसूस कर सकते हो. और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा हो सकता है पूरी ना कर पाओ बिकॉज ऑफ डीमोटिवेशन. तब आप ब्लेम यूज़ करने लग जाओ, वो कि तुमने ऐसा करा था, मैंने तो ये कहा था पर तुमने ये करा था, और एंड रिजल्ट उसका कुछ और ही निकल गया. सो यू कैन स्टार्ट टू ब्लेम अदर पीपल. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट बिकॉज आपके पास मौका ज़रूर आएगा जहाँ पर आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हो, बट डोंट डू दैट. डोंट. That's the guidance. That's actually a big message here. यहाँ पर आपके लिए
एंजल आंसर्स डेक से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर मैं आपके लिए 3 कार्ड यहाँ पर इस डेक से पिक करूँगी और आपने अपने लिए एक कार्ड चूज़ करना है। आपने अपने मन में अपने करियर रिलेटेड 2022 कोई क्वेश्चन पूछना है और उस क्वेश्चन का आंसर जो है इस एंजल आंसर टैरो डेक से आपको मिलेगा। येस नो भी हो सकता है, कोई टाइमिंग भी मिल सकती है, कुछ और मैसेज भी हो सकता है। आप अपने मन में अपना सवाल रेडी रखो। So this is going to be the card number 1. Oh. Then this is card number 2. This is card number 3. All right. So आप पॉज भी कर सकते हो और अपना कार्ड पिक कर सकते हो। मन में अपना सवाल जो है रखना, उसका आंसर अभी आपको मिल रहा है। So मैं पिक कर रही हूँ कार्ड नंबर 1। क्या मैसेज है आपके लिए? बिग हैप्पी चेंजेस। सो जो भी आपका क्वेश्चन था अपने करियर रिलेटेड फॉर 2022, यहाँ पर बड़े और अच्छे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर अच्छी ही कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, अच्छा चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट येस, डेफिनेटली समथिंग इज चेंजिंग, बट दैट चेंज इज गुड। यहाँ पर अगर आपने कार्ड नंबर 2 पिक करा है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो जो भी आपके मन में सवाल था अपने करियर से, उसका आंसर है, उसका जवाब सीधा सीधा है कि 1 साल बाद वो चीज़ यहाँ पर होती आपके लिए नज़र आ रही है। फिर उसके बाद अगर आपने कार्ड नंबर 3 पिक करा है, इट इज सेइंग रोमांस। यहाँ पर आपके लिए रोमांस भी नजर आ रहा है। एट योर वर्क प्लेस यू कैन गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन, दैट कैन इवन हैपन। एंड इट्स ऑल्सो द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप एज वेल, 2 पीपल कमिंग टुगेदर, 2 लोग एक साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। बट आई डू सी कि यहाँ पर आपका काम में मन लगा हुआ है, एंड आई डू सी अ पार्टनरशिप और even romantic life partnership happening for you in the year 2022, and you can meet this person at your workplace while you're working or in a university kind of setting where you are learning. तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है पाइल नंबर 3। ऑल राइट, सो ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 3. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पाइल, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू. And do like this video reading and subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए एस्ट्रो टैरो रीडिंग या फिर नक्षत्र कुंडली रीडिंग भी बुक करा सकते हो. The link is in the description box below. All the information is on my website. So yeah, that was it. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.